Good morning, dear all students. How are you all of? Okay. So, dear students, last class, whatever we discussed, so that these things were little bit we have to revise because these subtopics are very important for our solid stats. Okay. If we revise these things means then definitely we acquired or we gain our coming topics because these things are related to our coming topics. Okay, that's why little bits only 1 minute or 2 minutes. So what first one important things is what the number of atoms present in a simple or BCC structure or FCC structure. Yes or no, dear students? Already we determine and find the number of atoms present in simple structure 1, BCC structure is 2 and FCC structure is 4. Okay, so this one will be speeds. All of you listen carefully. Number 2, after the number of atoms, after what? The distance between nearest neighbors and radius. Distance between nearest neighbors is represented by the D and radius is R. So every cubic, the simple or prima type or BCC or FCC, the simple diameter formula A and radius formula A by 2. In BCC structure, diameter formula root 3A by 2 and radius formula root 3A by 4. And FCC structure, diameter formula A by root 2 and radius formula A by 2 root. These things. Okay. I hope you all people shall remember these things. Number 3. After completed these things, some numericals are there. Some numericals which is related to number of atoms and radius and density. Okay. Next, our again the importance term is what? Packing efficiency. What? Already yesterday I told you these things. What? The packing efficiency, which also very important. Packing efficiency also in 3 modes. One is simple, another is BCC, another is FCC. This simple is I think 52.4%, BCC is 68%, FCC is 74%. I think already we done these numerical terms on problematic things. Okay, the another point is known as density of a unit cell. Density of unit cell. We know the density of unit cell, density means mass by volume. Density of unit cell is represented by the letter rho. We are getting the some concluded part what? Z into capital M by N capital A base A into A to the power Q, where Z means number of atoms present in unit cell, M means capital M means molar mass of the elements, N means Avogadro's number, and A to the power Q means volume of the cube. So dear students, already we discussed all these things. These are the numerical parts of about of solid states. I hope these questions will become your board examination. Sure, dear students. Any one question also can. I hope you all people go and practice more and more time. Okay, dear students. So already these things we discussed our before classes. Okay. So next, dear students. So today we will be discuss about the again theoretical importance persons. The name is closed packed structures. Okay, what the about of a closed packed structure? What do you mean by closed packed structure? We know very well closed packed structure means any structure, either simple or BCC or FCC or either one dimensional or two dimensional, three dimensional structure. How the particles are packed, how the atoms are packed. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एफसीसी स्ट्रक्चर और बीसीसी स्ट्रक्चर और सिंपल स्ट्रक्चर में क्लोज पार्टिकल्स हाउ दे आर पैकिंग ईच अदर्स, that one by one we have to discuss. Dear students, this is the theoretical parts. Okay, please all of you listen carefully. In a crystal, the constituent particles means atom, ions or molecules get closely packed. इन ए क्रिस्टाल पिला माने कौन बुझ बुझुछ गोटे क्रिस्टाल रे क्रिस्टाल माने कौन जे सॉलिडिफिकेशन फॉर्म माने गोटे स्फटिक बा जहाँ भी एटा गोटे गोटे एग्जांपल दे कि मु बुझेबी ना गोटे क्लास रूम रे स्टूडेंट्स माने बसचंदी टीचर पढ़ाउचंदी बुझी पारछ इन ए क्रिस्टाल दैट मीन्स सपोज ए जेन्युइन एग्जांपल गोटे क्लास रूम रे द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने को माने पिले either atoms or ions or molecules. ये केमिस्ट्री एग्जांपल एटम्स आयन्स मॉलिक्यूल्स किंतु क्लासरूम रे क्यों माने एटम्स आयन्स मॉलिक्यूल्स माने स्टूडेंट माने ए माने पुणी कौन होती गेट क्लोजली पैक्ड
हाँ ना नाई लाइन बाय लाइन क्लासरूम रे स्टूडेंट माने बसिकी पैक होइकी रोचन ना नाई जार पोजिशन रे सी कौच गोटे क्रिस्टाल रे ना कौन कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने से कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को माने एइदर आटम्स और आयन्स और मॉलिक्यूल्स माने क्लोज पैक्ड होइकी रहिथिबे बुझी पारछो। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इन ए क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट माने गोटे जो जे कोनोसी गोटे सब्सटेंस रे पार्टिकल्स माने जदि क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट होइथिबे बा से इन ए क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट रे द मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस इज ऑक्युपाइड ना कौन धरिनियो ये गोटे जिनस ठीक अच्छे आयर किसी पार्टिकल्स माने अरेंज होइकी अछंती एई जो भितर जेतकी पार्टिकल्स माने ऑक्युपाई करिसंती आर मैक्सिमम स्पेस कौन हो पिले माने मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस इज ऑक्युपाइड माने अधिकांश स्पेस कौन ऑक्युपाई अधिकार करि नै थिबे केउ माने पार्टिकल्स और एटम्स और मॉलिक्यूल्स माने केउ थारे क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट रे बुझी पारछो। थर्ड नंबर पॉइंट द स्टेबिलिटी ऑफ द पैक्ड सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ क्लोज पैकिंग कौन कहूँ द स्टेबिलिटी ऑफ द पैक्ड सिस्टम दैट मीन्स ये जो क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट रो स्टेबिलिटी पुणी क्या ऊपर डिपेंड करिया पिले डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ क्लोज पैकिंग एक्सटेंट माने पिले लार्ज बड़ मैग्नीट्यूड बिग मैग्नीट्यूड माने बड़ धरणर परिसर क्लोज पैकिंग ऊपर से डिपेंड करिवो देखो पिले जेते बड़ क्लासरूम होइथिबो सेतिकी पिला बसिबे जदि छोट क्लासरूम होइथिबो छोट धरणर पिला माने कम अमाउंट रो पिला बसिबे बुझी परछो सेमति पुनी तार कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऊपर पुनी से डिपेंड करिवो का कोनटा स्टेबिलिटीटा बुझी परछो गोटे जेन्युइन एग्जांपल जदि गोटे 25 केजी वाला गोटे पॉलिथिन बा अखा जदि नब तारे 25 केजी रो अमाउंट ही धरिवो तारे 50 केजी 30 केजी एमती धरिवो नाही तो जदि गोटे 30 केजी और 50 केजी वाला तुम नब तारे सेतिकी अमाउंट धरिवो बुझीपारछ से भाया यहाँ कहूँ। नेक्स्ट पॉइंट कौन कहूँ द पैकिंग ऑफ द पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टाल माने से क्रिस्टाल रे जो पार्टिकल्स माने पैकिंग करा जायछि से माने पुणी कौन करेंगे डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड शेप से माने कहा ऊपर डिपेंड्स करेंगे साइज एंड शेप माने आकार एंड आकृति विषय बुझीपारछ से कौ भाया आकार अच्छी एइदर रेक्टांगल और स्फेरिकल कौ भाया से साइज शेप अच्छी ना गोटे क्रिस्टाल रो पैकिंग होता पार्टिकल्स में डिपेंड करती। नेक्स्ट पॉइंट लेट अस डिस्कस द पैकिंग लेट अस एबे चलो आम डिस्कस करबा कौन डिस्कस करबा द पैकिंग इन द मेटल्स माने जो मेटल्स बा जो एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन्स मान को मेटल्स बोली गोटे रिगार्डेड कला सूचौछि जो मेटल्स माने पैकिंग होइछंती हुएर जोठारे कि द कन्स्टिट्यूएंट एटम्स माने गठनकारी जो एटम्स आर ऑफ द सेम साइज इन ए पर्टिकुलर मेटल यार मीनिंग बुझुछ पिले दैट मीन्स पिले गोटे 50 केजी पॉलिथिन रे बा गोटे 30 केजी वाला पॉलिथिन रे जदि तुम चाउल भर्ती करूछ माने चाउलर ही मेटल्स बा चाउलर ही पार्टिकल्स थिबो चाउल गोटे 20 केजी भर्ती करदेव 10 केजी गोटे आउ एक्सट्रा एनदर सब्सटेंस जदि भर्ती कले सेमती हम ना पुणी माने गोटे टाइप सब्सटेंस तारे पैक होथिबो सेथिपाई स्टेटमेंट कहूँ लेट अस डिस्कस द पैकिंग इन द मेटल्स वेयर द कन्स्टिट्यूएंट एटम्स आर ऑफ द सेम साइज इन ए पर्टिकुलर मेटल गोटे जिनस सेम साइज रही थे चाउलर साइज कौन थी राइस जो भाया थी से भाया सी रही एक्सटेंड किसी ना। नेक्स्ट द मेटल एटम्स आर रिगार्डेड जो आम जो एटम्स को नहीं जो एटम्स को मेटल बोली आम कहूचे से मेटल एटम्स आर पुणी कौन रिगार्डेड माने ताको सूचा जाउची सूचौची जे कौन रिगार्डेड कौन बोली ताको आउची गोटे सॉलिड स्फीयर पुणी सॉलिड स्फीयर मान जानिछ एमती होइकी थिबे पुणी बुझीपारछ जो एटम्स बा जो मॉलिक्यूल्स बा जो आयन्स आमर ना कौन गोटे क्रिस्टाल रे पैकिंग ही रही से एटम्स को पुणी आम कौन रिगार्डेड करूचे सॉलिड स्फीयर बोली ओके। नेक्स्ट कहूँ द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैन बी बिल्ट ऑफ इन 3 स्टेप्स कौन कहूँ 3 डायमेंशनल कहीं कहला पिले वी नो वेरी वेल सॉलिड पॉजेस 3 डायमेंशनल प्लेसेस बिकॉज इट volume definite volume because it contains 3 dimensional places length breadth height that's why solid रे कोन 3 dimensional structure पुणी कैन करि परिबो कोन करि परिबो बिल्ड तयारी करि परिबो बिल्डिंग करि परिबो कोन 3टा स्टेप्स पुणी ना से 3टा स्टेप्स कोन पिले ना से 3टा स्टेप होची पिले वन इज क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन बुझुछो वन डायमेंशन दोज आर कंटेन्स ओनली लेंथ कंटेन्स करुवा गोटे फिगर रे कौन क्लोज पैकिंग होते क्यों माने एटम्स बा आयन्स और मॉलिक्यूल्स सेमती क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन मीन्स इट कंटेन्स लेंथ एंड ब्रेथ क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन मीन्स इट कंटेन्स लेंथ ब्रेथ हाइट दीज आर द 3 ways
which are the three-dimensional structures can depends upon these things. Okay, now first one by one we have to discuss. Okay, dear students.